Hello students, very good morning to all of you. In this video we are going to read about the president who is the first person for a country. He is known as the first person of a country, and it is a very great designation in our country according to our constitution. Now you see, while the prime minister is the head of government, the president is the head of the state. It is said and it is also in our constitution, as a democratic country, our prime minister is head of the government, but the president is also head of the state. In our political system, the head of the state exercises only nominal power, and in the political system of our country, the head of the state only works as a nominal power. केवल नाम की शक्ति के लिए वो काम करता है, स्टेट की पावर उसके पास रहता है, लेकिन सारी चीफ पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है. The President of India is like the Queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. But when you talk about the reputation, the luxuries of our Indian president, at that time we find it that our president is equal to the Queen of Britain. Because our president gets all the facilities, all the comfort and luxuries like her. The president survives the overall functioning of all the political institutions in the country, so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. And the president supervise the overall functioning. ओवरऑल जो फंक्शंस होता है पूरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का कंट्री के अंदर, क्या स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रुख है, इन सारी चीज़ों को आप सुपरवाइज करने का, इन सारी चीज़ों को नोटिस करने का काम प्रेसिडेंट के माध्यम से ही होता है. प्रेसिडेंट इन सारी चीज़ों को फोकस करते हैं. The president is not elected directly by the people, and in our democratic country, president is not a designation that can be elected by the people. The elected members of parliament, MPs, and elected members of the legislative assembly elect her. In our country, the member of parliament and the member of legislative assembly, means MP and MLA, elect our president. A candidate standing for president's post has to get a majority of votes to win the election. और एक कैंडिडेट जो प्राइम प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है, चुनाव मैदान में होता है, उसके लिए इलेक्शन को जीतने के लिए वोट्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. और इससे अब पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरे राष्ट्र में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको सर्वोच्च शक्ति के रूप में दिखाया जा सकता है. At the same time, the presidents can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. And at the same time, when we talk about the president and other powers in the country, we found that it can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. This ensures that she remains only a nominal executive. और इससे पता भी चल जाता है कि सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, जबकि राष्ट्र की पूरी व्यवस्था, सारी जानकारियों का जो फार्मूला होता है वो प्राइम मिनिस्टर्स के पास ही होता है. प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव.
The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. But when you read the constitution, at that time you will get that there is a lot of things for our president, and the president could do. All governmental activities take place in the name of the president. कोई भी गवर्नमेंटल जो एक्टिविटी है वो प्रेसिडेंट के सामने ही जाता है. ऑल लॉ मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम. कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो बड़ी से बड़ी पॉलिसी बनाई जाती है वो सब उन्हीं के पास होकर इश्यू होती है. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ, और जितनी भी जो प्रेसिडेंट मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं देश में, बड़ी से बड़ी जो नियुक्तियां होती हैं, वो बड़ी से बड़ी नियुक्तियों का पावर किसी और को नहीं, वो सारी पावर्स प्रेसिडेंट को ही होती है. अब यू कैन सी हियर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इट इज़ अ वेरी ग्रेट डेजिग्नेशन इन आवर कंट्री. द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, एक्सेट्रा. दीज आर द ग्रेट डेजिग्नेशन, अ वेरी ग्रेट डेजिग्नेशन इन आवर कंट्री, एंड एवरी वन was appointed by our president, because president has power to appoint them. But we should remember that the president exercises all these powers only on the advice of the council of minister. और हमें भी याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इन पावरों का बहुत ही एक्सरसाइज भी करता है, जैसा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करते हैं. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस, बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन, शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू इट. लेकिन प्रेसिडेंट जो है काउंसिल मिनिस्टर के रिकन्सिडर करने पर, एडवाइस करने पर पुनः उस चीज़ को केयर करते हैं और दोबारा जो है उसके लिए वो बाध्य होते हैं. Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if the parliament passes the bill again, she had to sign it. कोई भी देश में बड़ी से बड़ी बिल को और पारित करवाना है तो उसे जो हमारी पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बिल को पारित करवाना पड़ता है. उस बिल को पारित करवाने के बाद भी उसे प्रेसिडेंट के टेबल पे ले जाते हैं. प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को काफ़ी दिन के लिए डिले कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है, लेकिन फिर से दोबारा अगर पार्लियामेंट अगर उस चीज़ को भेजती है तो फाइनली प्रेसिडेंट हैड टू साइन इट. So you may wonder, what does the president really do? Can she do anything on her own at all? There is one very important thing she could do on her own: appoint the prime minister. When a party or coalition of parties secures a clear majority in the election, the president had to appoint the leader of the majority party of the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. अब आप यहाँ पे आश्चर्य करते हैं कि प्रेसिडेंट का क्या वास्तव में क्या कर सकते हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं. उस समय इलेक्शन के बाद लोग देखते हैं कि जो पार्टी अगर मेजॉरिटी में है या फिर कोई पार्टी जो कोलिशन में है, गठबंधन में है, जो मेजॉरिटी में रहेगी उस पार्टी के को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं और उसमें से चीफ जो लीडर रहता है उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट करने का काम करते हैं. When no party or coalition get a majority in the Lok Sabha, the president exercise her discretion. लेकिन दोनों कोई भी पार्टियां अगर मेजॉरिटी में नहीं आ रही तो उस समय जो है प्रेसिडेंट जो है वही वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वही वहाँ पर सत्ता का देखभाल करते हैं. वहाँ पे राष्ट्रपति का ही शासन होता है. The president appoints the leader who, in their opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president asks the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specific time. और फिर अगर उस कंडीशन में प्रेसिडेंट वहाँ पे एक लीडर को अपॉइंट करते हैं जो उनकी नज़र में मेजॉरिटी सपोर्ट में हो, जिसको सब लोग नेता मान लें, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उस न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर को कुछ दिन का समय दे देते हैं. उस दिन समय के अंदर जो है उनको लोकसभा में अपनी बहुमतता को, मेजॉरिटी को, मेंबर्स के मेजॉरिटी को साबित करना रहता है. नाउ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्रेसिडेंशियल
all over the world are not always nominal executive like the President of India. In many countries of the world, the President is both the head of the state and the head of the government. The President of the United States of America is the most well-known example of this kind of president. The US President is directly elected by the people. He personally chooses and appoints all the ministers. This द हेडिंग द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस हेडिंग में आपको यह बताने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। हमारा जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा पूरा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट हमारा यहाँ पे एज ए चीफ काम नहीं करते। लेकिन यूएसए को आप ले लें, रसिया को आप ले लें, चाइना को आप ले सकते हैं। इन सारे कंट्रीज़ को आप जब लेंगे, ऐसे बहुत से कंट्री हैं, तो आपको लगेगा तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ही वहाँ पर सब कुछ है। प्रेसिडेंट ही वहाँ पे चीफ वहाँ का लीडर होता है, चीफ वहाँ का मेन गवर्नमेंट का हेड रहता है। उसी के अंडर में उस देश में सारी चीज़ों को सिस्टम को लागू किया जाता है। उसी वो अपने मन चाहे मिनिस्टर्स को बनाता है। तो उस जगहों पर जहाँ पे प्रेसिडेंट को सारा पावर होता है, ऐसे जगहों के उस सिस्टम को जो है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इन कंट्री लाइक आवर दैट फॉलो द ब्रिटिश मोड द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, therefore our system is called the parliamentary system of government, parliamentary system of government, and where the president's power is, where the president is in major power, that is a presidential system in that particular country. Okay, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे प्रेसिडेंट्स का पावर, प्रेसिडेंट का वैल्यू, जिसको आपने यहाँ पर देखा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड बाय एवरीवन।